Hello everyone, welcome back to VPT classes. So before proceeding to the another task today after speaking one, I just want to introduce myself. I'm a PT trainer from 1.5 years. I want to share each and everything related to your speaking, related to your writing, listening and reading about all of the complete PT material. So I will tell you each and everything related to this one in these videos. It will be quite helpful for you in your real exams. Those who are struggling in their real exam to achieve their desired score, please make sure be in touch with these videos. These videos will be quite helpful for you to achieve your desired score within the very first attempt or in any other attempt. So let's proceed with the very second task today. And the second task for the speaking one is your repeat sentences. So first, I just want to introduce what are repeat sentences. So what is the meaning of repeat sentences, then the marking criteria, and then the strategies. Today we will discuss these three aspects first. What is repeat sentence? What are the marking criteria of these one? And what are the strategies? So let's proceed with this one. So firstly, what is repeat sentence? So this video I will make in Hindi as well as in English. Those who are not comfortable to understand the Hindi, just listen it carefully. I will repeat few of the things in English as well. So firstly, what is repeat sentence? Repeat sentence क्या होता है? Repeat sentence में है कि एक ऐसा टास्क है जिसमें आप एक सेंटेंस को सुनते हो. वो सेंटेंस जो है वो अराउंड 8 to 16 वर्ड्स लॉन्ग होगा और उसी सेंटेंस को आपको रिपीट बैक करना होता है इन अ सेम सीक्वेंस. नॉर्मली आपको रियल एग्जाम में 8 to 16 वर्ड लॉन्ग आपको एक सेंटेंस आता है, उसको आपने एज इट इज रिपीट करना होता है. बट आप जब प्रैक्टिस करते हो पोर्टल स्पेस तो द वर्ड लिमिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू 16 वर्ड लिमिट. वो आपकी वर्ब भी हो सकती है, 17 होगी, 18 हो सकती है, अप टू 20 भी हो सकती है. वहां पे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्जैक्टली मुझे कितने पिक करना है, कि रेलिवेंट वे से पिक करना है. अगर मुझे इतना लेंथी आ जाता है तो मुझे हेजिटेट ना करके मुझे कितना रेलिवेंटली पिक करके अपने डिजायर्ड स्कोर्स को अचीव करना है और अपने स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए अपने मार्क्स को कंट्रीब्यूट करवाना है. Now, repeat sentences is all about, like, you will hear a sentence for this one, which will be around 8 to 16 words long, and you have to repeat back the same sentence in a same sequence. Don't try to distort the sequence of the sentence. If you try to distort the sequence of the sentence, then that will deduct your marks for your listening. So ये जो repeat sentences है, ये आपको speaking and listening दोनों के लिए marks को contribute करता है. बट कितने मार्क्स आपके स्पीकिंग के लिए रहते हैं और कितने मार्क्स आपके लिसनिंग के लिए रहते हैं, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द मार्किंग क्राइटेरिया. मार्किंग क्राइटेरिया में क्या है कि इसमें अब आपको अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस मिलते हैं आपके रियल एग्जाम में. हर एक क्वेश्चन आपको 13 मार्क्स का मिलेगा. 13 मार्क्स अब आपको कैसे मिलते हैं? देयर आर 3 पैरामीटर्स. द वेरी फर्स्ट इज योर कंटेंट विच इज ऑफ 3 मार्क्स, fluency which is of 5 marks, pronunciation which is of 5 marks. So parameters जो हैं content, fluency and pronunciation, ये तीनों आपको हर एक क्वेश्चन में मार्क्स देते हैं. चाहे अब आपको रियल एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए या 12 क्वेश्चन आए, आपको इन तीनों के बेसिस पर ही मार्क्स मिलते हैं. अगर आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन आपका 13 मार्क्स का होगा. 5 क्वेश्चन 13 मार्क्स के नहीं होंगे, हर एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का होगा. अगर 10 आ रहे हैं तो 13 मार्क्स के हो गए, 12 के आ रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का होगा. अराउंड 20 to 25 पॉइंट्स या 20 to 30 पॉइंट्स आपके डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं आपके लिस्टिंग के लिए. दिस टास्क इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ये इजी नहीं है. यस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसमें आपको मार्क्स अपने अचीव करने ही होते हैं. देन एट दैट टाइम यू विल गेट द गुड स्कोरिंग इन योर लिसनिंग पार्ट. अब जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट एक्चुअली है क्या? कंटेंट हम कहते किसको है? जो आप सेंटेंस हियर करते हो, जब आप उस सेंटेंस को एग्जैक्टली विद 100% एज यू सी हियर, अगर आप 100% एज इट इज उसको रिपीट कर देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं. अगर आप समवट अराउंड 50 to 80% अपने कंटेंट को रिपीट करते हो, देन आपको 2 या 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलते हैं. क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो 3 मार्क्स का है. अगर आप 100% रिपीट करोगे तो 3 आउट ऑफ 3, 50 to 80% करोगे तो 2 to 2.5 आउट ऑफ 3. अगर आप 25 to 45% कंटेंट रिपीट करते हो, देन आपको 1 to 1.5 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 3.
सो कंटेंट का क्या मतलब है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कंटेंट क्या है। जब ट्यूटर्स उनको फीडबैक देते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन द कंटेंट एरिया, इसका मतलब है कि जो सेंटेंसेस वहां आपको बोले जा रहे हैं, जो स्पीकर वो सेंटेंस बोल रहा है, अगर आप उसको एक्यूरेटली पिक नहीं कर पा रहे हो एज पर योर डिजायर स्कोर, यू कांट अचीव योर डिजायर स्कोर। दैट इज टोटली, यू कैन से, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे अपनी लिसनिंग के लिए। अगर आप लिसनिंग के लिए उसको अचीव नहीं कर पाए तो यस, आप 2-3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स पे भी लैग कर सकते हो लिसनिंग में। So you need to make sure you have to work more and more on the content area. Content है तो सिर्फ 3 marks का, but this is very very important for the listening aspect. फ्लुएंसी का आपको पता है कि फ्लुएंसी में आपको मॉडरेट स्पीड ही रखनी होती है। थ्रू आउट द स्पीकिंग सेक्शन आपको मॉडरेट स्पीड ही रखनी है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी, व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इन योर स्पीकिंग एरिया, प्लीज चेक माय लास्ट वीडियो जिसमें मैंने स्पीकिंग का वेरी फर्स्ट टास्क रीड अलाउड डिस्कस किया, जिसमें फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इजीली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली आपको वर्क करना कैसे है इस पे। सो दैट्स इट फॉर द मार्किंग क्राइटेरिया। आफ्टर दैट हम अब इसमें देखेंगे कि अगर आप 100% पिक करते हो 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे, 50 to 80% पिक करते हो तो 2 to 2.5 मार्क्स कैसे मिलेंगे, 25 to 45% पिक करते हो कंटेंट तो 1 और 1.5 आपको कैसे मिलेंगे। तो इनको अचीव करने के लिए, इनको एक्वायर करने के लिए आपको एग्जैक्ट कौन सी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना होता है, बिकॉज स्ट्रेटेजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्टली इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो यस, आपको नहीं पता होगा कि मुझे इन सेंटेंसेस को पिक कैसे करना है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको सेंटेंसेस कैसे पिक करने हैं तो यस, आप मार्क्स लूज करोगे ही करोगे। अगर आपको पता है, आप इन स्ट्रेटेजीज के साथ वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी डिजायर्ड स्कोर्स हैं आप इसको इजीली अचीव करोगे। सो मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट द डिजायर्ड स्कोर, मोस्टली द 9, 8, 7 भी 6 और 6.5 वाले भी यही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। बट आई विल टेल यू 6 और 6.5, 7, 8, 9 वाले किसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देयर आर टोटल 4 स्ट्रेटेजीज हियर। द वेरी फर्स्ट वन इज द राइट डाउन द इनिशियल वर्ड्स इन योर नोटबुक। इनिशियल वर्ड्स इन योर नोटबुक मतलब आपको जो वहां पर नोटबुक प्रोवाइड होगी, जब आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आप प्रैक्टिस में इनिशियल वर्ड्स को कैच करोगे, अपनी नोटबुक में उसको लिखोगे और उसको साइड बाय साइड रिकॉल करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि इनिशियल वर्ड लिख के चुप होकर बैठ जाओगे और उसको रिकॉल नहीं करोगे। अगर आप रिकॉल नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे कि आपने इनिशियल वर्ड्स जो लिखे हैं वो किसके लिए स्टैंड कर। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। नॉर्मली 8 और 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वो यही प्रेफरेंस करते हैं। इवन आई फॉलोड दिस स्ट्रेटेजी इन माय रियल एग्जाम। सो इनिशियल वर्ड्स इन योर नोटबुक इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको वर्क में, अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको डे टू डे आप प्रैक्टिस में लेके आ रहे हो तो दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कभी कम नहीं होंगे, आपको हर एक वर्ड याद रहेगा। बट येस, हर एक स्ट्रेटेजी को अगर आप सोचो कि 1 डे में आप इसको अचीव कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। 4 डेज भी लग सकते हैं, 1 वीक भी लग सकता है। बट येस, अगर आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे एक बार तो नो वन विल बीट यू इन द रियल एग्जाम टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो इनिशियल वर्ड्स को आप कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर ने बोला है देयर आर टोटल 4 स्ट्रेटेजीज टू डू दिस। तो वहां पे आप जब इस सेंटेंस को सुन रहे हो तो अपनी नोटबुक में TAT4STDD ऐसे लिख लो और साइड बाय साइड इसको रिकॉल करो। जब इसको रिकॉल करोगे, जैसे ही आप अपने स्क्रीन पर देखोगे कि जो ब्लू बार है वो लिटिल बिट मूव कर गया है, लिटिल बिट, नॉट मोर देन 3 सेकेंड मूव नहीं करवाना है, क्योंकि स्पीकिंग में ये फर्स्ट रूल है कि आपको बिफोर 3 सेकेंड अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करना होता है। जैसे ही वहां पर लिख के आ जाए रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स और लिटिल बिट बार मूव करे, आपने अपना रिस्पॉन्स इमीडिएटली स्टार्ट कर देना है। लुक एट योर नोटबुक एंड सी जो इनिशियल वर्ड्स लिखे हैं वो किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं और उसको आप अपना आंसर दे दीजिए। सेकेंड है आपका जस्ट क्लोज योर आईज एंड मेमोराइज द सेंटेंस। आपको पता है कि अब रिपीट सेंटेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं, अपनी आईज को क्लोज करो, लिसन दैट सेंटेंस केयरफुली, मेमोराइज इट, मेमोराइज दैट सेंटेंस और फिर उसको देखो कि आप वहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स लिख के आ गए। जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट लिख के आ गया, लिटिल बिट बार मूव कर गया, आपने अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देना है। द थर्ड स्ट्रेटेजी इज राइट डाउन द 50% इनिशियल इन योर नोटबुक एंड रिकॉल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स यहाँ से 50% का मतलब होता है हाफ ऑफ दैट वन। हाफ सेंटेंस को
आप अपनी नोटबुक पे लिख लो, मीन्स उसके इनिशियल्स अपनी नोटबुक पे लिख लो और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप रिकॉल कर लो, मतलब TATF, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को रिकॉल कर लिया और जितनी स्ट्रेटेजीज, जितनी भी आपने इनिशियल वर्ड्स लिखे हैं उसको साइड बाय साइड रिकॉल करो और उसको भी रिकॉल करो जिसको आपने लिखा नहीं है अपनी नोटबुक पे, और फिर उसको अपना आंसर दे दीजिए। ये थर्ड स्ट्रेटेजी है। फोर्थ है कि 50% इनिशियल्स को अपनी नोटबुक में ना लिखते हुए उसको रिकॉल कर लो और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के इनिशियल्स लिख लीजिए। ये स्ट्रेटेजी भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन चारों में से जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप चारों के चारों यूज करने की कोशिश करो तो आप खुद वहां पर मैसअप कर दोगे अपने रियल एग्जाम को। इट्स बेटर कि इन चारों में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। The best strategy is these two. So some students are more comfortable with these two as well, but it depends upon student to student. कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है फर्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, कुछ है सेकंड के साथ, कुछ थर्ड एंड फोर्थ के साथ है। इट्स टोटली अप टू यू, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको जरूर अपने रियल एग्जाम में अप्लाई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई टोल्ड यू कि स्पीकिंग में आपको 4 सेकेंड से पहले पहले अपना 3 सेकेंड से पहले पहले अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करना होता है। इट मीन्स वहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी आपको बीप साउंड नहीं सुनाई दिया जाएगा। जैसे ही सेंटेंस एंड होगा इमीडिएटली आपको अपने स्क्रीन पर देखना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट जैसे लिख के आ जाए, लिटिल बिट बार जैसे ही मूव करे वो ब्लू बार, आपने अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करना है। क्योंकि 3 सेकेंड्स के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो फिर आपके मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा तो आपको कोई भी सेंटेंस जो भी आपने वहां पर पिक किया है उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। So make sure be alert for this one because you need to be attentive in repeat sentences. Now एक क्वेश्चन करेंगे हम, उससे आपको पता चलेगा कि exactly हमें करना क्या है। For 6 or 6.5, listen this sentence first. Your lowest quiz grade has been omitted from the calculations. So the transcript of this sentence is this one. Your lowest quiz grade has been omitted from the calculations. So ये जो sentence है ये आप कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपरली पिक कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपरली पिक नहीं कर पाते हैं। नो वन इज सो परफेक्ट टू गेट द 100% मटेरियल फ्रॉम द रिपीट सेंटेंस। कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, स्पेशली जो लेंदी वंस होते हैं उसके लिए तो कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है। सो अगर आप इसमें this strategy और this one is work only for 6 और 6.5 के लिए, अभी बता रही हूँ ये वर्क भी 6 और 6.5 के लिए करेगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 100% मटेरियल नहीं पिक कर पाते हो तो 50% को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 50% बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। आप स्ट्रेटेजी कोई भी यूज कर सकते हैं, जस्ट कि आप अपनी क्लोज योर आईज एंड रिकॉल द सेंटेंस या इनिशियल वर्ड्स को लिखो या रेस्ट ऑफ द टू जो है उनको आप यूज कर सकते हो। बट 50% आपके केस के लिए इनफ है। 50% से ज्यादा आपने पिक नहीं करना है। दिस वन इज स्पेशली फॉर 6 to 6.5। 6, 7, 8 और 9 के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है। तो 6 और 6.5 वाले क्या कर सकते हैं, सिर्फ 50% मटेरियल पिक कीजिए। बाकी अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो वहां पर मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे पिक करते हो योर लोएस्ट क्विज ग्रेड हैज कैलकुलेशन, देन आप नेक्स्ट को प्रेस कर देते हो, दैट इज टोटली रॉन्ग वे। क्योंकि आपने जो फिलर्स ऐड किया ये आपके फ्लुएंसी के मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा। तो इट्स बेटर कि आपने अगर क्विज ग्रेड तक ही या हैज बीन तक ही पिक किया है, इट्स ओके, जस्ट स्पीक लाइक दिस वे, योर लोएस्ट क्विज ग्रेड हैज बीन एंड इमीडिएटली प्रेस द नेक्स्ट यस एंड देन मूव ऑन, दैट्स इट। भूल गए कोई बात नहीं, अगर याद रहता है तो उसको ज्वाइन कर दो उसके साथ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस वे से 6 और 6.5 वाले अपने रिपीट सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर तो आपको कंप्लीट सेंटेंस याद रहता है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो 50% आप बोल के आ सकते हो। यू विल डेफिनेटली अचीव योर डिजायर्स को, डेफिनेटली। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट के कुछ भी याद नहीं रहा, मुझे सिर्फ लास्ट का ही याद रहा है, जैसे आपको याद रहा ओमिटेड फ्रॉम द कैलकुलेशन, तो आप इसको भी बोल सकते हो बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट कंटेंट। बट अगर आप ऐसा सोचो कि मुझे ये याद रह गया, बाद में आपको ये याद आ रहा है ओमिटेड फ्रॉम द कैलकुलेशंस योर लोएस्ट क्विज ग्रेड,
बाद में आपको फर्स्ट के कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मीन्स आप बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं कर सकते, बिकॉज इन पियर्सन में एक स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू डिस्टॉर्ट द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर आप डिस्टॉर्ट करते हो, अगर आप यहाँ से यहाँ को जा रहे हो, तो फिर वो आपके मार्क्स को डिडक्ट करेगा। अगर आप सिर्फ यही बोल रहे हो या फिर फर्स्ट से इस तरफ मूव कर रहे हो और मिडिल का आप भूल गए, जैसे कि योर लोएस्ट क्विज ग्रेड फ्रॉम द कैलकुलेशन, आप हैज बीन ओमिटेड भूल गए, डोंट वरी, आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, बट यहाँ से आप बैकवर्ड नहीं आ सकते। ओमिटेड फ्रॉम द कैलकुलेशंस, ओके, नेक्स्ट, यस एंड देन मूव ऑन, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। ये था 6 और 6.5 के लिए। अब 7, 8 और 9 के लिए क्या कर सकते हो? यस, 8 और 9 के लिए you need to be perfect in this area. Yes, no one is so perfect to attempt 100% in the lengthy sentences. जब 16 की बात आती है, 15 की बात आती है, तो कोई भी इतना perfect नहीं होता है. Even when I attempted my real exam, I get my real exam, तो वहाँ मुझे भी 14 to 15 word का सेंटेंस आया था और वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो मैंने भी वहाँ पर अराउंड 60 to 70% ही पिक किया है, रेस्ट मुझे भी याद नहीं रहा। तो जब आपको ऐसा होता है, तो आप जितना भी आप पिक कर पाते हो, जितना भी आप उसको बोल के आओ, बट यस, ये कोशिश जरूर रखनी है आपने कि आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को 100% दो, क्योंकि अगर आप इसमें आपने ज़्यादा मैसअप कर दिया, तो फिर आपको 8 और 9 लेने मुश्किल हो जाएंगे। सो यस, अगर लेंथी है तो उसमें लिटिल बिट मैसअप हो सकता है, बट अगर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इजी है, मीडियम में है, तो आपको 100% ही अपना देना पड़ेगा। 7 के लिए कोशिश करिए 70% आप पिक कीजिए, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इससे आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे। अगर आप 80% नहीं पिक कर पाते हो, तो 70% तक जरूर पिक करके आओ। अगर रेस्ट आपको लगता है कि मैं 100% ही पिक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कि मुझे ये शॉर्ट है, इजी है, मीडियम है, मैं कर सकती हूँ, तो आप उसको करो। अगर नहीं होता है तो 70% तक कोशिश करो। तो इस वे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। और मेक श्योर बी अलर्ट इन दिस वन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर योर स्पीकिंग एज वेल एज फॉर द लिसनिंग। बट लिसनिंग के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। If you have some doubts about repeat sentence, just message me. And if you like this video, just like, share, and subscribe this.